Hello to all my students. I welcome to you all of this English class. In English, we will see lesson number 3 from your Honeysuckle book. And the lesson name is Taro's Reward. There is no writer name of this story because this is a Japanese story which is retold in your book. Before starting the paragraphs of the story, here are some important points which is very important to you. So I will read this one first. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ये कहानी एक विचारशील और प्यारे बेटे के बारे में है जो कि बहुत कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपने माता पिताओं की इच्छाओं को पूरा कर सके और इस कहानी के दौरान उसको बिन मांगी मदद मिल जाती है। आइए जानते हैं कि उस लड़के का नाम क्या है और उसे मेहनत करने के दौरान कौन सी बिन मांगी मदद मिल जाती है। वी विल सी द फर्स्ट पैराग्राफ। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. टारो नामक एक युवा लकड़हारा अपनी माँ और पिता के साथ एक अकेली पहाड़ी पर रहता था। All day long he chopped wood in the forest. Here chopped means cut into pieces. पूरे दिन टारो जंगल में जाता और लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता। तो he worked very hard. He earned very little money. यद्यपि टारो कड़ी मेहनत तो करता परंतु वो पैसे बहुत कम पैसे कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. ये चीज़ टारो को बहुत दुखी बना देती थी। वो एक विचारशील लड़का था। वो बस इतना ही चाहता था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को वो सारी चीज़ें दे सके जो उनकी ज़रूरत है। Move to second paragraph. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है जब टारो और उनके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे तो अचानक से तेज़ हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Here whistled through means passed through with a whistling sound. सीटी के भांति आवाज़ आना। जब हवा तेज़ चलने लगी तो उस हवा के बहाव की वजह से झोपड़ी थोड़ी सी क्रैक हो गई और झोपड़ी के अंदर हवा भी प्रवेश करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सीटी बजा और उन लोगों को ठंड भी लगने लगी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तभी अचानक टारो के पिताजी कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मैं एक कप साके पी सकूं। एक तो ये मेरे शरीर को भी गर्म करेगा और मेरे बूढ़े से दिल को भी अच्छा बनाएगा। Here sake is a Japanese drink which is very expensive in Japan. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. अपने पिताजी की ये इच्छा को सुनकर टारो पहले से ज़्यादा दुखी हो जाता है। दिल को गर्म करने वाला ये साके बहुत ही महंगा था। How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? अब टारो अपने आप से सवाल करता है और कहता है कि मैं कैसे और पैसे कमा सकता हूँ और किस तरह से मैं थोड़ा सा साके अपने बूढ़े बेचारे पापा के लिए ला सकता हूँ। He decided to work harder than before. वो निर्णय लेता है कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। Move to fourth paragraph. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टारो रोज़ाना वक्त से पहले जग जाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। He chopped and cut as the sun climbed. जैसे जैसे सूर्य आसमान में ऊपर आता गया वैसे वैसे टारो लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता गया। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. शीघ्र ही उसे बहुत गर्मी लगने लगी और उसे अपना जैकेट निकालना पड़ा। His mouth was dry and his face was wet with sweat. गर्मी के कारण उसका मुख सूख गया था और पसीना होने की वजह से उसका चेहरा भीग जाता है।
My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वो सोचता है मेरे बेचारे बूढ़े पापा वो भी मेरी तरह गर्म होना चाहते हैं. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. इतना सोचने के बाद ही टारो दुगनी तेजी से लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है. वो ये सोचता है कि उसे और भी अधिक पैसे कमाने हैं और अपने बूढ़े पापा के हड्डियों के लिए उसे वो महंगा साके खरीदना ही चाहिए. Move to fifth paragraph. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तभी अचानक टारो लकड़ियों को काटना बंद कर देता है. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ की वजह से उसके मन के अंदर कई सारे प्रश्न बनने लगते हैं. वो ये सोचता है ये आवाज़ क्या है. क्या ये हो सकता है बहते हुए पानी की आवाज़ हो. टारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टारो को ये याद नहीं रहता है कि उसने कभी भी इस जंगल में बहते हुए पानी को देखा है या बहते हुए पानी की धारा की आवाज़ को सुना है. He was thirsty. वो बहुत प्यासा भी रहता है. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. वो हाथ में जो कुल्हाड़ी लिया रहता है उसको नीचे रख देता है और जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है उस डायरेक्शन में हमारा टारो भागने लगता है. I am ending my video here. I hope you like it. See you in the next video. Thank you.